بیرون کے لیے گزشتہ 10 جماعتیں تھیں، موجودہ 17 ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ جن ملکوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں، فیجی میں 2، مالدیو، برازیل، مڈغاسکر، حبشہ، انڈونیشیا میں 2، موزمبیق، برونڈی، یوگانڈا، پورٹوگل، زامبیا، زمبابوے، قطر، بحرین، موریٹانیہ، سینیگل، صومالیہ۔ اور اس کے علاوہ تقریباً 26 جماعتیں ایسی ہیں جن کی ویزا کے پروسیس کارروائیاں چل رہی ہیں، جن کے رخ یہ ہیں: کانگو، سیرالیون، منگولیا، ملاوی، لائبیریا، چیلی، بوتسوانا، تنزانیہ، گانا، ملاوی، جارڈن، کانگو، گامبیا، نائجیریا، گینی بساؤ، موریشیس، رینیون، UK، ٹرینیڈاڈ باربوڈس، کینیا، مڈغاسکر، کرغزستان، جاپان، برکینا فاسو، صومالیہ، جبوتی اور گیانا۔ زیادہ تر کی گزشتہ کوئی جماعت نہیں تھی، موجودہ 6 جماعتیں ہیں۔ 4 ماہ کی جماعتیں گزشتہ 54 تھی، اس مرتبہ زیادہ تر اپنے بنگلہ دیش کے لیے موجودہ 6 جماعتیں ہیں۔ 4 ماہ کی جماعتیں گزشتہ 54 تھی، اس مرتبہ 129 ہیں۔ 40 دن کی گزشتہ 984 جماعتیں تھیں، اس مرتبہ 614 کی کارگزاری ہے۔ دیگر صوبوں میں گزشتہ 4 مہینے کی 52 جماعتیں گئی تھیں، اس مرتبہ 127 جماعتیں، اور گزشتہ دیگر صوبوں میں چلے کی 917 جماعتیں تھیں، اس مرتبہ 555 جماعتیں روانہ ہوئی۔ جن صوبوں کے میں چلے 4 مہینے کی جماعتیں روانہ ہوئی ہیں: کرناٹک میں 49 جماعتیں 4 ماہ کی، چلے کی 94، کیرلا میں 1 4 ماہ کی 8 چلے کی، تمل ناڈو میں 10 4 ماہ کی 32 چلے کی، مہاراشٹر میں 2 4 ماہ کی 78 چلے کی، بہار میں 2 4 ماہ کی 26 چلے کی، آندھرا پردیش میں 13 4 ماہ کی 40 چلے کی، چھتیس گڑھ میں 1 4 ماہ کی 4 چلے کی، گوا میں 1 جماعت چلے کی، اڑیسہ میں 3 جماعتیں 4 ماہ کی 3 چلے کی، بنگال میں 3 جماعتیں 4 ماہ کی 17 جماعتیں چلے کی، آسام میں 11 جماعتیں چلے کی، بہار میں 6 جماعتیں 4 ماہ کی 33 جماعتیں چلے کی، جھارکھنڈ میں 1 جماعت 4 ماہ کی 16 جماعتیں چلے کی، UP میں 16 جماعتیں 4 مہینے کی اور 94 جماعتیں چلے کی، اتراکھنڈ میں 6 جماعتیں 4 ماہ کی 10 جماعتیں چلے کی، دلہی میں 3 جماعتیں چلے کی، پنجاب میں 3 جماعتیں 4 ماہ کی 7 جماعتیں چلے کی، ہماچل میں 1 جماعت چلے کی، ہریانہ میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی 10 جماعتیں چلے کی، جموں کشمیر میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی 9 جماعتیں چلے کی، راجستھان میں 5 جماعتیں 4 ماہ کی 40 جماعتیں چلے کی، MP میں 15 جماعتیں چلے کی، نیپال میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی اور چلے کی 3 جماعتیں، اور میوات میں 1 جماعت، اور صوبے میں 2 جماعتیں 4 ماہ کی اور 59 جماعتیں چلے کی تقاضے پر چلائی گئی۔ ماہانہ 3 دن جماعتوں کا اوسط گزشتہ 2000 تھا، اب کی بار 1700 ہے۔ ماہ مستورات گزشتہ بیرون میں 1 جماعت تھی، اس بار 3 جماعتیں ہیں۔ وہ تینوں جماعتیں ایک بوتسوانا، ایک ملاوی اور ایک کینیا میں۔ 40 دن کی ملک میں گزشتہ 5 جماعتیں تھیں، اس وقت 11 جماعتیں ہیں۔ وہ 11 جماعتیں نیلور، غازی آباد، دہرادون، بھساول، شیوان، امراوتی، جے پور، جودھپور، نوہر، شیموگا اور تمکور میں کام کر رہی ہیں۔ 10 دن کی گزشتہ 70 جماعتیں تھیں، اس وقت 75 ہیں۔ 3 دن کی گزشتہ 554 تھی اور موجودہ 583 ہیں۔ گھروں کی تعلیم گزشتہ 68,809 مکانات میں تھی، اس وقت کارگزاری 68,884 مکان میں ہے۔ 6 صفات کے ساتھ گزشتہ 22,165 میں تعلیم تھی اور موجودہ کارگزاری 22,724 ہے۔ شب گزاری کے مقامات پورے صوبے میں 115 ہیں۔ مجموعی طور پر گزشتہ 20,602 کی کارگزاری تھی، اس وقت 20,700 کی کارگزاری ہے۔ قیام کے والے گزشتہ 3,750 تھے، اس وقت کی کارگزاری 3,780 ہے۔ سال میں گزشتہ سال 177 علماء چل رہے تھے، اس وقت 110 چل رہے ہیں۔
4 माह में 120 उलमा चल रहे हैं। तबक़ाती काम के एतबार से समाज से माजूरीन के अंदर हमारे यहाँ गुज़िश्ता कारगुजारी में 1 जमात चिल्ले की गई थी। इस वक्त 6 जमातें माजूरीन की काम कर रही है मुल्क में। एक पूना में, एक अहमदाबाद में, एक बम्बई में, एक जम्मू में, एक कच्छ भूज में और एक वादी में। 3 दिन की गुज़िश्ता 28 जमातें थी और इस वक्त 34 जमातें हैं। समाज से माजूरीन का पूरी तादाद पूरे ज़िले के अंदर, पूरे सूबे के एतबार से समाज के माजूरीन की पूरी तादाद पूरे सूबे में 1761 है, जिसमें 4 माह वाले 18, 40 दिन लगा हुए 222 और 3 दिन लगा हुए 500 साथी हैं और इनके तर्जुमान 140 हैं। गुज़िश्ता 12-13 अगस्त को पूरे ज़िले, पूरे सूबे का एक अमूमी समाज से माजूरीन का जोड़ हुआ था, जिसमें 198, 200 में 2 कम माजूरीन जुड़े और तर्जुमान इनके 166 जुड़े और 57 माजूर ऐसे थे जिन्होंने इस साल के अंदर, नए माजूर जिन्होंने वक्त लगाया और हफ्तारी इज्तिमा में मजमूई तौर पर 90 समाज से माजूरीन जुड़ते हैं। रेलवे वालों में पूरे सूबे में रेलवे वालों की जो तादाद है 2287 है। इसमें कूली 600 है। बुलेट ट्रेन और सेंट्रल गवर्नमेंट के दीगर प्रोजेक्ट में जो मुसलमान काम करते हैं इनकी तादाद 2500 है। हमाल 125 हैं। पार्किंग वाले 330 हैं, रेलवे पार्किंग वाले। इन रेलवे वाले साथियों में 4 महीने लगा हुए 91 साथी हैं, 40 दिन वाले 142 हैं और 2023 में इस साल में 4 माह में 3 साथी रवाना हुए और 40 दिन के अंदर 9 साथी रवाना हुए और आइंदा शनिचर इतवार को पूरे सूबे में रेलवे वालों का अहमदाबाद से करीब खेड़ा में एक कस्बे में इनका एक अमूमी जोड़ है। इंशाअल्लाह वहाँ से भी जमातें चिल्ले 4 महीने की बनेगी, रवाना होगी। असली तलबा में माशाअल्लाह हमारे यहाँ मस्जिद की सतह से काम होता है। हर मस्जिद के अंदर तलबा की, स्टूडेंट की कमोबेश तादाद होती है। वो अपनी मस्जिद वार जमात में जुड़ते हैं, मस्जिद वार जमात के सारे अमाल में शिरकत करते हैं, अमूमी गश्त में शिरकत करते हैं, रोज़ा अपनी जमातों के साथ लगाते हैं और उन्हीं के ज़रिए से साल के शुरू के अंदर इनकी फहरिस्त बन जाती है। 10वीं, 11वीं, 12वीं, कॉलेज, ITI और दीगर इनके जितने दर्जात होते हैं ऊपर नीचे के, ये तलबा के रास्ते से माशाल्लाह इनकी हर मस्जिद के पास एक लिस्ट होती है, किनका कब वैकेशन है, किनकी कब छुट्टियां होती हैं, ये सारी चीज़ें इनके पास होती हैं। हर ज़िले में एक मामूल है कि साल में तलबा के अमूमी 2 जोड़ ज़िले पैमाने पर करते हैं। एक जब उनका बड़ी छुट्टियां होने वाली होती हैं अप्रैल मई में, तब हर ज़िले वाले अपने तमाम तलबा को जोड़कर इनकी अप्रैल मई की तश्कील करते हैं। अमूमन ये जोड़ हमारे सूबे में फरवरी महीने में होते हैं, क्योंकि मार्च में ये एग्ज़ाम की तैयारी में होते हैं, तो मार्च में जोड़ करने से इन पर जल आती है। फरवरी में सारे अजला वाले अपने यहाँ जोड़ करके इनकी तश्कीलें कर लेते हैं और इनकी माशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने पूरी तरतीब बन जाती है, जमातें मखलूत बन जाती है, इनके रुख आ जाते हैं और अप्रैल मई के वैकेशन में ये चिल्ले चिल्ले की जमातें इनकी रवाना हो जाती है। दूसरा जोड़ इनका, जब इनका नया साल शुरू होता है जून में, जून जुलाई तक एडमिशन चलते रहते हैं, जुलाई तक ये मुकम्मल हो जाते हैं। इसके बाद माशाल्लाह हर ज़िले वाले अपने यहाँ इन तलबा को जोड़ लेते हैं। अब इन्हें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपनी पढ़ाई के साथ, अपने अमाल की पाबंदी के साथ, यूनिवर्सिटी में कैसे मेहनत करनी है, कॉलेज में कैसे काम करना है, स्कूल में कैसे काम करना है, ये सारी बातें इनके सामने तफसील से समझाई जाती हैं। बाद जगह अच्छी कारगुजारियाँ होती हैं, वो कारगुजारियाँ जोड़ के में होती हैं जिससे दूसरे तलबा को रहबरी हो जाती है। इसकी बरकत से माशाल्लाह ये स्कूलों में, कॉलेजों में बाजमात नमाज होती है। इनके पास 5-10 मिनट का वक्त होता है, तो 5-10 मिनट के लिए वो नए नए स्टूडेंट की मुलाकातें करते हैं और इनको माशाल्लाह नमाज में, अमाल में जोड़ने की फिक्र करते रहते हैं। ऐसी हमारी मुस्लिम हॉस्टलें हैं जिनमें सूबे के भी और बाहर के सूबों के भी और गैर मुल्की तलबा रहते हैं। इन तमाम को माशाल्लाह जोड़ने की काम के एतबार से इन हॉस्टलों में फिक्र होती है।
इन हॉस्टलों में इनके अपने इबादत खाने होते हैं जिनमें 5 वक्ता नमाजें होती है, तालीम होती है, इन्हीं की अपनी मस्जिद और जमात होती है, इन्हीं का अपना एक गश्त का दिन मुतय्यन होता है और इन्हीं की माशाअल्लाह फुर्सत के वक्तों में नए पुराने तलबा में मेहनत करने की एक तरतीब होती है। ऐसे हर ज़िले के अंदर कुछ मुतहर्रिक तलबा होते हैं जो अपने अपने हलकों के अंदर माशाअल्लाह ज़िलों में काम को लेकर चलने वाले होते हैं। हर हलके में से 2-5 होते हैं, तो वक्तन फवक्तन 1.5-2 महीने में, कभी 2-2.5 महीने में ये अपने 2-5 जहाँ कम ज़्यादा तादाद है उस एतबार से ये तलबा जुड़ जाते हैं और जुड़कर ये अपने अपने हलकों में तलबा का काम किस तरीके से चल रहा है, क्या नौयत है, इसकी कम्मन कैफन कारगुजारी लेने के बाद आगे इनको क्या करना है, आगे इनके सामने क्या तकाजा है। कोई छुट्टियां आ रही है, छुट्टियों के लिए क्या तैयारी करना है। जैसे सामने दिवाली का छोटा वैकेशन आएगा, इसमें अशरे की खूब जमातें बनेगी, तो अभी से इसकी तश्कील और तैयारियां शुरू हो जाती है, तो माशाअल्लाह आखिरी मौके पर इनकी वसूलियाबी आसान हो जाती है और अच्छी काफ़ी तादाद में हर ज़िले से अशरे की जमातें मखलूक बनकर निकलती हैं। इसके अलावा एक तबका स्टूडेंट का वो होता है असली तलबा में कि जिनकी पढ़ाई का निज़ाम सेमेस्टर के साथ हर 6 महीने के बाद इनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की छुट्टियां मिलती है, तो ऐसे तलबा की मुस्तकिल इनके पास फहरिस्त होती है, तो इनकी छुट्टियों पर इनकी अशरे की जमातें बनाकर करीब के ज़िलों में भेजी जाती है और ये तलबा भी माशाअल्लाह अपनी पढ़ाई के साथ पूरे मुतहर्रिक रहते हैं। हमारे यहाँ सूबे का जो मशवरा होता है, ये सूबे का मशवरा हर 2 महीने के बाद होता है। तकरीबन 26 साल से हमारा मामूल है। 1997 के अगस्त महीने से ये हर 2 महीने में हमारा सूबा जुड़ता है। शुरू में 3-4 की तादाद थी, बढ़ते बढ़ते इस वक्त हमारी तादाद 12 की है। इन 12 में 2 साल वाले उलमा होंगे, बाकी 10 में 4 मुतय्यन होंगे जिन्हें हर मशवरे में शिरकत करनी है, इल्ला ये कि वो जमात में हो तो वो नहीं, बाकी 6 साथी उन ज़िलों से बदल कर मशवरे में शिरकत करेंगे। ये मशवरा भी जगह बदल कर हर 2 महीने पर होता है और उस पर जुड़ने की तरतीब ये होती है कि जुमा के दिन असर में पूरा सुबह जुड़ जाता है। जुमा के दिन असर में पूरा सुबह। इसमें मस्जिद 2 चीज़ें होती हैं, एक बैरून जाने वाली जमातें जिस ज़िले में होती है वो अपनी जमातों को लेकर पहुँच जाते हैं। जिन ज़िलों की जमातें पिछले 2 महीने में काम करके आई हैं वो जमातें भी माशाअल्लाह इस मशवरे में शिरकत कर लेती हैं। असर से लेकर इशा तक बार मरतबा इशा देर से होती है। जितनी बैरून काम करके जमातें आई हैं इसकी एक तफसीली कारगुजारी होती है। ये नई जाने वाली जमातें जो पेश होने के लिए आई हैं, इन जमातों के सामने काम करके आने वाली जमातों की कारगुजारी होती है। जाने वाली जमातों को बहुत अच्छी बड़ी रहबरी मिल जाती है। मशवरा शनिचर के दिन सुबह से शुरू होता है। आमतौर पर सुबह से इतवार की ज़ोहर तक का वक्त मांगा होता है। कभी इतवार में 1 नशिश, कभी इतवार में ज़रूरत होती है तो 2 नशिश के बाद वक्त आ जाती है। जब ज़िले का तनफीदी मशवरा, ज़िले का ये सूबे का मशवरा पूरा हो जाता है, इसके दूसरे इतवार हर ज़िला अपना तनफीदी मशवरा करता है। यहाँ से जितने अज़ाइम, इरादे, तकाज़े मशवरे से लिए हैं, ये तनफीज़ के अंदर इसको अपने पूरे ज़िले के सामने माशाअल्लाह लाया जाता है। और इस तनफीज़ की ये शक्ल होती है कि आम तौर पर इतवार के दिन होता है, शनिचर की रात इशा की नमाज पढ़ के खा पी के फारिग होकर हर जगह की पूरी मस्जिद और जमात जहां इनके लिए जगह तय होती है मशवरे से, माशाअल्लाह उस जगह पर पूरी मस्जिद और जमातें पहुंच जाती है। जहां बड़ी मस्जिदें हैं ज़िलों में वहां मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। जहां बड़ी मस्जिदें नहीं होती हैं वहां खेतों में पिंडाल बांध कर ये मशवरा होता है। पूरी मस्जिद और जमातें पहुंच जाती हैं और ये पूरा वक्त फारिग करके आते हैं और ये मशवरे आमतौर तक हमारे ज़ोहर तक चलते हैं। और इनमें जो तकाज़े सूबे के मशवरे में ज़िले के 10-12 साथियों ने लिए हैं, इन तकाज़ों की तरतीब दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ 10 जमातों के तकाज़े लिए हैं, भी तरतीब देते हैं कि भाई हमने एक तकाज़ा लिया है, तो माशाअल्लाह पूरे ज़िले की मस्जिद और जमातें इसकी अज़ाइम इरादे करते हैं। ये तकाज़े 10, 12, 15, 20 तक पहुँच जाते हैं अज़ाइम तक। फिर वो मस्जिद और जमातें अपने अपने हलकों में मस्जिदों में पहुंचने के बाद इन तकाज़ों को अपनी मस्जिदों के अंदर तनफीज़ की शक्ल बनाती है।
एक चीज ऊपर से चलती है, नीचे तक मस्जिद तक पहुंच जाती है। ऊपर का जिम्मेदार तबका, नीचे की मस्जिद और जमात का तबका सब मिलकर एक इज्तिमाई फिक्र के साथ जब एक बात को सोचता है, करता है, तो अल्लाह की मदद से उस तकाजे को पूरा करने के लिए आता है। इसके अलावा हमारे पूरे सूबे के जिम्मेदार साथियों का साल में एक सफर होता है। इसमें तकरीबन 30 से 35 की तादाद होती है। पूरे सूबे में 21 हल्के हैं। हर हल्के को पूरे 48 घंटे दिए जाते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा, चाहे इसका मजमा 30-35 हज़ार का हो, चाहे इसका मजमा 500 का, पूरे 48 घंटे दिए जाते हैं। और उसमें 48 घंटे में पूरे आमाल, पूरी फिक्रें, पूरी कारगुजारियाँ, आम मजमा भी है, वजीफा जमातें भी है, नया मजमा भी है। बल्कि जहाँ ये इज्तिमाअत का जब माहौल बनता है, इससे पहले एक बात हमारे सूबे के मशवरे से तय होती है, वो ये है कि हर ज़िला इज्तिमा की तारीखों से पहले ऐसी अपनी एक तारीख तय करें कि इनके जोनों में जमातें चलें। जोन का मतलब यह है कि हर ज़िले में कुछ गैर मानूस बंजर बस्तियाँ होती हैं, जहाँ आमतौर पर हमारी जमातों के लिए मस्जिदों के अंदर दाखिला ममनू होता है। भाइयों की मस्जिदें होती हैं, जमातें नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ टेंट लेकर जमातें जाती हैं। किसी के खेत में, कहीं धर्मशाला में, या किसी की स्कूल के अंदर अपना टेंट लगाकर जमात रहती है। जहाँ मुसलमानों के 5 से 7 मकान होते हैं या उससे ज़्यादा मकान होते हैं, हस्बे ज़रूरत जमात 2 दिन या उससे ज़्यादा क़याम करती है। और वहाँ 100% एक घर में जाकर ईमान, आमाल, आखिरत, बाजमात नमाज पढ़ कैसे शुरू हो उस गांव के अंदर, उस बस्ती के अंदर, उसकी जमात फिक्र करती है। और साथ में अपने ज़िला का आइंदा 1.25 महीने के बाद फलानी जगह पर इज्तिमा है, अगर इज्तिमा के नाम से एलर्जी है, सीरत पाक का जलसा है, इस उन्वान से इनको दावत देकर ऐसे नए मजमे को इज्तिमा पे शरीक किया जाता है। ये जोनों की जमातें काम करते अपना चिल्ला पूरा करके ये इज्तिमा में पहुंचती है। और इज्तिमा ही में इनके लिए एक मुस्तकिल मजलिस होती है कारगुजारी की, जिसमें हर हल्के के नुमाइंदा साथी भी होते हैं। और ऐसी तंजीमें जो तंजीमें ज़िले के अंदर मकातिब चलाती हैं, और मकातिब के सिलसिले में जो उलमा किराम फिक्र होते हैं, इनके नुमाइंदा हजरात भी उस कारगुजारी में शिरकत करते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जो बस्तियाँ मुसलसल मेहनत के बाद माशाअल्लाह नरम हो गई, इनमें वहशत ख़त्म हो गई, अब वहाँ मकतब की शक्ल जिंदा हो जाती है। यही तंजीम सारा मकतब का निज़ाम संभाल लेते हैं। वली साहब जाते हैं असर की नमाज में, वहाँ अजान देते हैं, 5, 7, 10 घर मुसलमानों के हैं, इनको जोड़कर बाद जमात नमाज पढ़ते हैं। असर से मगरिब तक इनके बच्चों को लेकर तालीम देते हैं, कायदा अम्मा पढ़ाते हैं। मगरिब की नमाज फिर मौलाना अजान देते हैं, फिर इनके अंदर बस्ती के अंदर ये बाकायदा मगरिब की नमाज अजान जमात के साथ होती है। अमूमन ये वो बस्तियाँ होती हैं जहाँ न मस्जिद हैं, न मदरसे हैं, न इबादत खाने हैं, और मुसलमानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, औरतों के लिए अजान की आवाज़ तक इनके कान में कभी नहीं कुछ सुनाई देती। ऐसी बस्तियों के अंदर जोरों की जमात के रास्ते से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बस्तियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नमाज बा जमात शुरू हो गई। कई जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब का निज़ाम पूरा काबू में आ गया। और ये जोरों में चलने वाली सारी जमातें पैदल चलती हैं, ये सवारी अपने साथ नहीं रख सकती, पैदल चलेगी जमातें। कारगुजारी ऐसी होती है कि कोई जमात एक गांव से दूसरे गांव 10 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 28 से 30 किलोमीटर। बाद जमात हिम्मत वाली होती है, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक 35 किलोमीटर पैदल चलती है। सुबह तहज्जुद में निकल जाते हैं, ज़ोहर तक बस्ती के अंदर पहुंच जाते हैं। मौलाना ऐसी कुछ बस्तियां हैं पूरे गुजरात सूबे में जहाँ पर 50% नमाजी, 60% नमाजी, 70% नमाजी, ऐसी कुछ बस्तियां बनी माशाल्लाह। खरूज तो खूब है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये गुज़िश्ता साल दिसंबर में जब ये सफ़र हुआ हमारा साथियों का, तो उसमें बाद यानी शुरू सफ़र से तो नहीं, लेकिन 20 सफ़र में बाद अदला से ये चीज़ें पूछी गई। तो हमारा ये बनासकांठा है, हमारा ये महसाना है, साबरकांठा है, उनमें बाद बस्तियाँ ऐसी मिली कि जिनमें 100% लोग नमाजी हैं, मर्द भी नमाजी हैं, औरतें भी नमाजी, 100%। कोई बालिग मर्द, कोई बालिग औरत बेनमाजी गांव के अंदर नहीं है। कहीं 80 मकान हैं, कहीं 105 हैं, कहीं 110 मकानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन से भी पूरे सूबे में फिक्र दिलाई जा रही है
کہ بھائی نمازیوں کی تعداد ہر مسجد کے اندر بڑھائی جا رہی ہے. ہمارا کام تو امت میں سارے دین کو زندہ کرنا ہے. اب ظاہر کی بات ہے دین کا سب سے آسان عمل کوئی ہے وہ نماز ہے. اگر امت نماز کے لیے آمدہ نہیں ہوئی تو دیگر امور کے لیے کیسے آمدہ ہوگی؟ الحمدللہ اس لائن سے صبح میں فکر بھی ہو رہی ہے اور تقریباً الحمدللہ سب جگہوں سے اچھی کارگزاریاں ہو رہی ہیں. اس وقت اس کو جمع نہیں کیا گیا ہے لیکن الحمدللہ ہمارے صوبے کے مشورے میں یہ چیز آتی ہے کارگزاری ہے. ہر جگہ الحمدللہ اس لائن سے ہمارے ساتھی فکر کر رہے ہیں کہ نمازیوں کے فیصد بڑھنے چاہیے. یہ فکر تو ہندوستان کے تمام صوبوں میں انشاءاللہ اگر شروع ہو جائے گی تو یہ رخ بہت اچھا ہے. خروج تو ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے اور مزید ترقی سے نوازے، لیکن 100% بستیوں کو نمازی بنانے کی فکر کی. جی ہمارے سماج سے ہماری یہ جو طبقاتی کام کے اندر کچھ چیزیں رہے. ہاں عصری طلبہ کی گزشتہ 2 ماہ میں 42 جوڑ ہوئے، اس میں 16,900 طلبہ جوڑے اور رکشہ والوں کے مجموعی طور پر الگ الگ اضلاع میں 8 جوڑ ہوئے جس میں 655 رکشہ والے جڑے. ٹیچر حضرات کے 2 جوڑ ہوئے جس میں 175 ٹیچر جڑے. اسکریپ کا کام کرنے والے کا 1 جوڑ ہوا 132 جڑے. مزدور طبقے کے 5 جوڑ ہوئے 360 مسلمان جڑے. بیکری کا کام کرنے والوں کا 1 جوڑ ہوا جس میں 250 مسلمان جڑے. ڈرائیوروں کا جوڑ ہوا 1 جوڑ ہوا اس میں 30 جڑے. درزیوں کا 1 جوڑ ہوا جس میں 100 جڑے. تاجر حضرات کا جوڑ ہوا 4 جوڑ ہوئے، مجموعی طور پر 215 کی تعداد جڑی. ہیئر کٹنگ والوں کے 1 جوڑ ہوا جس میں 40 کی تعداد جڑی. یہ قریش برادری کے 5 جوڑ ہوئے 186 مجموعی طور پر جڑے. لکڑی فروشوں کا 4 جوڑ ہوئے 317 جوڑے. گیرج کا کام کرنے والے کا 1 جوڑ ہوا 17 جوڑے. ڈاکٹر حضرات کے 3 جوڑ ہوئے جس میں 86 ڈاکٹر جڑے. دیگر صوبوں کے اپنے اپنے کام کے لیے یہاں رہنے والے ہیں، ان کے 3 جوڑ ہوئے 250 جوڑے. پلمبروں کا جوڑ ہوا 1 جوڑ ہوا جس میں 55 جوڑے. کلر کام کرنے والوں کے 2 جوڑ ہوئے 80 جوڑے. ٹرانسپورٹ کے کام کرنے والوں کا 1 جوڑ ہوا اس میں 100 جوڑے. فیبریکیشن کا کام کرنے والوں کا 1 جوڑ ہوا 150 جوڑے. اور ریلوے کے مجموعی طور پر صوبے میں 4 جوڑ ہوئے جس میں 408 ریلوے میں کام کرنے والے ساتھی جوڑے. ایک گزارش تھی کہ ہمارا جو یہ مشورہ ہے تو اس میں تصویر یا ویڈیوگرافی سے پرہیز کرے. ویسے بھی ہمارے دین میں شریعت میں اس کی ممانعت ہے اور پھر ایسی ہماری مقدس مجلس ہے جس کے ذریعے سے دین زندہ کرنا ہو دنیا میں، تو ایسی مجلسوں میں اس قسم کی چیز سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے تصویریں جا کر پھر وہ وائرل ہوتی ہیں، یہاں باہر کے دسترخوان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہے، تو یہ بہت غیر مناسب ہے. خود بھی نہ کریں، اگر کوئی کر رہا ہو تو ان کو روک دیں. آسام تشریف ہے. آسام